Hello children. Today we are going to start our lesson number 4, long and short. Children, we will start from very basic concept of long and short that you have studied in class 2. So here I am showing you few long objects and short objects. In this picture you can see a pencil and a chalk. So here pencil is longer while the chalk is shorter. Here the rope on the left hand side is long while the rope on the right hand side is short. Here you can see two girls. The girl on the left hand side has long hair while the girl on the right hand side has short hair. Here you can see a boy and a girl. So on the left hand side the rope is long while on the right hand side the rope is short. Children, in second class you have studied about various methods to measure length like finger width, hand span, foot span. So now let's recall how to measure length by using foot span. Here you can see she will tell you how to measure length by using foot span. First, she stepped her first foot very accurately and carefully on the line. Then she stepped her second foot just after her first foot. Then again first foot. Again second foot. Observe carefully. So she took 6 steps to complete the line. So here the length of the line is 6 foot spans. Children, it's very important to note here that जो ये लाइन मेजर करी है अपने फुट स्पैन से, ये उसके फुट के अकॉर्डिंग है. बट अगर हम अपने फुट के अकॉर्डिंग मेजर करें तो किसी का फुट बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है. सो मेजरमेंट अलग अलग उसी के हिसाब से आएगा. अगर आपका फुट बड़ा है तो आप ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं. अगर आपका फुट बहुत छोटा है तो आपको ज़्यादा स्टेप लग सकते हैं. तो यहाँ हमने जो देखा वो गर्ल के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग 6 फुट स्पैन्स लगे इस लाइन को मेजर करने में. तो इस लाइन का लेंथ कितना हुआ? वो 6 फुट स्पैन्स हुआ. Children, now we will see how to measure with finger width and hand span. Here different objects are given like candle, stick, racket. Let's see. First is candle. So here is candle. She will measure this candle by using finger width. So see how she is measuring using finger width. So 2 finger width. Now she will use hand span. 1. So 2 finger width and 1 hand span. Now the next object is stick. See how she is measuring. 1, 2, 3,
4, 5. So 5 finger width. Now she will use hand span. 1, 2. 2 hand span. Now next object is racket. Now she will use finger width to measure the racket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 finger width. Now she will use hand span. 1, 2, 3. So 3 hand spans. Seven finger width and 3 hand spans. Children, in this lesson we will see another method to measure length. So first I will read out the question. Lali is selling things at her father's shop. A farmer comes to buy rope. लाली जो है अपने फादर की शॉप पर बैठी है और वहां पर कौन आता है, वहां पर एक फार्मर आता है रोप खरीदने यानी रस्सी खरीदने. Then farmer said, Can you give me 7 arms of rope? तो फार्मर बोलता है क्या तुम मुझे 7 arms of rope दे सकती हो. सो लाली जो है वो मेजर करती है अपने आर्म के अकॉर्डिंग और कहती है हेयर इज योर 7 arms of rope. बट जब फार्मर उसको मेजर करता है अपनी आर्म से तो वो बोलता है बट दिस इज ओनली 6 arms लॉन्ग. तो लाली कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है वाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 times ऑफ दैट लेंथ. तो लाली बोलती है कि आप अपने आर्म के अकॉर्डिंग इसको मेजर करो और 7 times ले लो. सो हेयर आप देख सकते हो कि लाली ने कैसे मेजर किया. सी हेयर उसने क्या किया, जो रोप का एंड है स्टार्टिंग से उसने अपने हाथ में लिया और फुल अपने शोल्डर तक यहाँ तक लेके गई और अपने आर्म के अकॉर्डिंग उसको 7 arms ऑफ रोप दिया. बट फार्मर तो उससे बड़ा है साइज में, तो उसका जो आर्म है वो लाली से बहुत बड़ा है. तो जो फार्मर का 7 arms ऑफ रोप था वो लाली के 7 arm ऑफ रोप से ज्यादा बड़ा था. सो फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने अपने आर्म से मेजर किया और 7 arms ऑफ रोप लेके गया. So children, next question is how many? In all these question you have to roughly estimate. You have to roughly measure. आपको एक roughly estimate या roughly measure करना है कि उसने कितने steps लिए होंगे. ठीक है. तो first question is in how many steps will Dorji cross the road? तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है दौरजी. तो वो आपसे पूछ रहे हैं in how many steps, वो कितने steps में road cross कर लेगा. तो we will measure roughly. Okay, let's see कितने steps लेगा. यहाँ पर हो गया 1, then 2, then यहाँ पर होगा 3, 4, 5, 6, 7 and 8. सो हमारे अकॉर्डिंग हमने जो रफली एस्टिमेट किया उसके अकॉर्डिंग दौरजी कितने स्टेप्स लेगा, उसके अकॉर्डिंग दौरजी 8 स्टेप्स लेगा. तो हम बोलेंगे कि दौरजी माइट क्रॉस द रोड इन 8 स्टेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि
इस टेबल पे ऐसे और कितने कप्स रखे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 3 कप्स रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पे हैं ये? 1 2 3, नेक्स्ट हो सकता है यहाँ 4 5 6 7। तो हम एक रफली एस्टिमेशन लगाते हैं कि यहाँ पर 7 कप्स रखे जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि अराउंड 7 कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। वी विल सी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच, के ये पॉट्स जो रखे हैं ट्री के नीचे, तो ट्री ब्रांच तक पहुंचने के लिए कितने पॉट्स और वहां पर आ सकते हैं। सो लेट्स सी, 1 2 नेक्स्ट 3 4 5। तो यहाँ पर हमने एस्टिमेट किया कि कुछ 5 पॉट्स जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। सो हम लिखेंगे अराउंड 5 पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच। नेक्स्ट वी विल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी शर्ट हम इस वायर पे टांग सकते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट की लेंथ इतनी है, सेकंड की इतनी होगी एंड थर्ड इतनी। तो हम एस्टिमेट करेंगे कि अराउंड 3 शर्ट जो है वो यहाँ पर हम इस वायर पे रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। So children, here I will tell you how to do measurement with scale. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है इस लेसन की वो ये है कि हमने डिफरेंट मेथड्स देखे कि कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं। फुट स्पैन यूज़ किया, हैंड स्पैन यूज़ किया, आर्म यूज़ की और फिंगर विड्थ यूज़ की। बट हम जो ये मेथड हैं वो अपनी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं मेजरमेंट के लिए? बिकॉज ये जो मेथड्स हैं वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते, क्योंकि किसी का आर्म बड़ा हो सकता है, किसी का फुट बड़ा हो सकता है, किसी का फुट छोटा हो सकता है, किसी की आर्म छोटी हो सकती है, किसी की फिंगर विड्थ बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है। सो सब लोगों के लिए फिर अलग अलग जो मेजरमेंट है तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, तो हम एक करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ऐसा मेथड यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए जो बिल्कुल यूनिवर्सल हो, जहां पर सब एक ही तरह से यूज कर सकें। तो वो हम किससे करते हैं? उसके लिए हम ये स्केल यूज करते हैं। या आपने स्केल देखा होगा, आप सभी के पास होगा। तो यहां पर हम शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है cm। cm क्या होता है? cm होता है सेंटीमीटर। तो हम जब भी लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हर एक नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 1 सेंटीमीटर ईच है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। सो चिल्ड्रन, जब आप अपने स्केल पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 0 से 1 तक के बीच में यहाँ पर आपको छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं। तो अब ये क्या है? ये होते हैं मिलीमीटर। सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। तो ये जो छोटे छोटे जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे मिलीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको कैसे कैसे मेजर करते हैं? ये हमारा हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1.0 यहाँ पर। फिर अब हम 1 पे पहुंच गए, तो हम 1 के बाद जो छोटी छोटी लाइन्स हैं उसको हम कैसे बोलेंगे? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0। अब हम 2 पे पहुंच गए। हम 2 के बाद कैसे स्टार्ट करेंगे? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0। अब हम 3 पे पहुंच गए, तो सिमिलरली हम कैसे करेंगे? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड देन
4.0। तो इस तरह से हम जो है स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं। तो जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइन आपको स्केल के थ्रू मेजर करनी हो तो हम किस तरह से करते हैं, हम ये स्केल का यूज करेंगे, हम सेंटीमीटर्स में नापेंगे। अगर कोई चीज छोटी है तो हम वी कैन मेजर यूजिंग सेंटीमीटर स्केल। अगर और भी बड़ा है तो इससे ज्यादा ही बड़े स्केल आते हैं जिसमें इंच आता है, तो हम इस तरह से मेजर करते हैं। पर हम छोटी चीजें जैसे हम लाइन बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हम ये सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हैं। आपको जब भी कोई लाइन ड्रॉ करने को आए या आप कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट या छोटी लाइन आप मेजर करें तो हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें हमेशा 0 से रख के स्टार्ट करना है, तो ही हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगा। रेस्ट वी विल डू इन आवर सेकेंड क्लास। थैंक यू।